become final year student as well as MCOM. Here is the numerical problems on whiteboard is related with requirement of GST registration. The problem says to Mr. Mohan, who is a resident of Nagpur, supply the following goods and services. Interstate supply of exempted goods 250, intra-state supply of exempted goods rupees 2 lakhs, supply of goods services in local market 3 lakhs, supply of goods and services in interstate market rupees 450, sale of goods being as an agent on behalf of company rupees 5 lakhs, supply of taxable services in interstate market rupees 50,000. And there is a 3 types of requirement. Actually, the numerical problem will be based on any one advice will be required from your side, but to save the time, because in online teaching the number of problems may not be as may be possible in physical classroom, and that's why I will try to explain the nature of numerical problems, how we should calculate the turnover, and on the basis of turnover we will give the advice to Mr. Mohan whether GST registration is required or not. I briefly recall you. आपको you have first keep only the 3 basic points in your mind regarding GST registration, and this is so simple. First you check the parties who supply the goods belong from which places. Like Nagpur belongs to Maharashtra state, so the state can be divided in 2 categories: general state, eastern state. If the general state supplier is there, only 3 conditions. If exclusively goods is supplied only, then the turnover must be more than 40 lakhs. यदि केवल वस्तुओं का सेल हो रहा है तो टर्नओवर 40 लाख के ऊपर चाहिए. यदि only sale is only for service, then 20 lakh is the limit, and if the sale of goods and service both, even then the turnover limit is 20 lakhs for general state. बेसिक यही रूल है कि जनरल स्टेट में यदि उसका टर्नओवर सिर्फ वस्तु है तो 40 लाख के ऊपर होना, और वस्तु के साथ सर्विस है या अकेली सर्विस है तो 20 लाख होना. और जब वो ईस्टर्न स्टेट स्पेशल राज्य का सप्लायर है तब वो लिमिट 20 से घटकर 40 से घटकर 20 पर आएगी और 20 से घटकर 10 पर आएगी. बस इतना सा उसका लिमिट है. अब इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखिए हम सॉल्व करते हैं. दिस एडवाइस विल डिपेंड सिचुएशन टू सिचुएशन. वी विल सॉल्व फर्स्ट द प्रॉब्लम्स एज फार एज कंसर्न द बेसिक numerical problem. Advise Mr. Mohan regarding requirement of GST registration. This time Mohan is a resident of Nagpur, therefore you look here, computation of turnover for GST registration of Mr. Mohan, Nagpur. Therefore in first situation we will prepare the numerical problem assuming that the assessee or the supplier is a resident of Nagpur. Have any problem? No. Second tips. When you want to compute the total turnover for GST registration, you should not left any items which are given in the numerical problem. जो गणित में जैसी जानकारी दी है as it is उठाकर इस टर्नओवर के स्टेटमेंट में रख देनी है बगैर किसी दिमाग को जोर लगा. जब मैंने बोल दिया you need not require to give the special attention or pressure to your mind while solving the numerical problem of GST registration, therefore you just copy and paste while calculating the total turnover without any hesitations. So the first, interstate supply of exempted goods. Interstate supply of exempted goods
rupees 250. Goods may be taxable or may not be taxable, it is exempted or whatsoever it may be. Must keep in your mind, though the goods are exempted, but it will consider at the time of calculate the total turnover. What will be the advice? It will be depend after make it total turnover is how much. If suppose exempted, all is exempted, even then you make the total. Don't be in hurry. इसे जल्दी में मत रहिए. Next, intra-state. Intra-state supply of exempted goods rupees 250, 2 lakhs here. As it is, without any further consideration, supply of goods and services in local market. Supply of goods and services in local market rupees 3 lakhs. Next, supply of goods and services in interstate market. Supply of goods and services in interstate market. In interstate market. Rupees 4,50,000. You must know the meaning of interstate and intra-state. Interstate means the selling and purchase process will be from one state to another state. And intra-state means the transaction within the state. महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में इंट्रा, एमपी का एमपी में इंट्रा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में इंट्रा, महाराष्ट्र टू एमपी इंटर, एमपी टू यूपी इंटर, यूपी टू दिल्ली इंटर, दिल्ली टू चंडीगढ़ इंटर. बार बार बहुत बार समझा रहा हूँ, वही चीज आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग एज एन एजेंट. सप्लाई ऑफ गुड्स being as an agent on behalf of company, on behalf of company, rupees 5 lakhs. Last, supply of taxable services. Taxable services in intra-state market of rupees 50,000. You must observe here we put the underline of taxable services in intra-state. Why this underline is here? It is for understanding to you. Many a time the student think that if the taxable goods or taxable services there, so it will sir require the GST registration without any condition. No, this is the wrong concept. I repeatedly ask you, the taxable services is not mean of GST registration is compulsory, but it will depend first on turnover. I will explain after some times why this underline is there. Therefore, please watch the video till the completion of answer. So you will find what actually are the meaning of this underline. मैं अभी फिर से बताऊंगा, फिर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे. अभी देखिए, मैंने पहले आपसे क्या कहा था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पहली तो सबसे पहली कंडीशन है आपको उसका टर्नओवर निकालना ही पड़ेगा. टर्नओवर निकालने के बाद में बाकी रूल्स फॉलो होते हैं. इसीलिए हमारा पहला काम क्या है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में दिए गए आंकड़ों के सहायता से
उसका टोटल टर्नओवर निकालना। और टर्नओवर निकालने के लिए कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डाटा दिए हैं उसको कॉपी पेस्ट करना है। मैंने कॉपी पेस्ट किया, ओके। कॉपी पेस्ट कर लेने के बाद अब आपको यहां करनी टोटल, एंड द नेम विल बी द टोटल टर्नओवर। इन हिंदी मराठी इसको बोला जाता है कुल विक्रय, और गणित में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कुल विक्रय की मात्रा पर ही सबसे पहले डिसाइड होता है। हाँ, ये जरूर है कि उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्री रूल्स भी है, पत्थर की लकीर नहीं है कि मंसूरी सर आपने बोल दिया कि वस्तु का विक्रय 40 लाख के ऊपर होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा नहीं है। कई बार वस्तु का विक्रय 40 लाख से कम है तो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। वो कंडीशन कौन सी है? तो बेटा उसके लिए कम से कम 3-4 वीडियो तो देखने पड़ेंगे, एक ही गणित में नहीं होता है। आज हल्का सा समझाऊंगा, ठीक है। यह हो गया। अब हम इसकी टोटल करें। 2 4 3 7 4 11 और 5 16 17 50 17,50,000। This is the total turnover. Now we have fulfilled the basic condition for giving the advice regarding GST registration, because what actually are the requirement? Number 1, this is the fundamental requirement. Advice Mr. मोहन को सलाह दीजिए काय के बारे में कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं। दिस इज द मीनिंग इन हिंदी। उसके लिए हमने पहले क्या किया, उसका टर्नओवर निकाला। टर्नओवर कितना हो गया? 17,50,000। अब अच्छे से देखो, आपको एडवाइस देना है। अब एडवाइस की कंडीशन बता रहा हूं कितनी है। सबसे पहले देखो कि ये एडवाइस आप किसको देने जा रहे हैं? मोहन। मोहन कहां का रहने वाला है? नागपुर का। नागपुर कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज बिलोंग टू स्पेशल स्टेट और जनरल स्टेट? तो जनरल स्टेट। नाउ व्हाट इज द रूल्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू टर्नओवर फॉर जनरल स्टेट? अब आपको याद रखना है दिमाग में कि सामान्य राज्य के लिए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का बेसिक नियम क्या है? टर्नओवर के बेस पर। तो बेसिक नियम यही है, यदि महाराष्ट्र के सप्लायर का वस्तु और सेवा, गुड्स एंड सर्विस बोथ का टर्नओवर यदि 20 लाख के ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लुक हियर, नागपुर पर्सन आर द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। नागपुर का ये मोहन नाम का सेलर वस्तु और सर्विस दोनों की सप्लाई कर रहा है। तब फंडामेंटल रूल ये कहता है कि उसका वस्तु और सर्विस दोनों मिलकर टोटल टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ओके, यहां टर्नओवर कितना है? 17,50,000। 20 लाख से कम है कि ज्यादा है? कम है। तब फर्स्ट स्ट्रोक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट बिफोर गिविंग द एडवाइस यू डोंट बी इन हरी। लेकिन इतना भी खुश मत हो जाना कि सर 20 लाख से कम, आपने अच्छे से बता दिया था, हमने दो ही बात को याद रखा, अकेली वस्तु है तो 40 लाख से ज्यादा और सेवा के साथ वस्तु है तो 20 लाख से ज्यादा। सर 20 लाख से कम लिखा, हमने लिख दिया, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। लेकिन आपको जो एक बात मुद्दे की याद रखनी है वो ये है कि दो द टर्नओवर इज लेस देन 20 lakhs, but if suppose there is
taxable services are interstate। यहां पर विक्रय 20 लाख से कम है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। एडवाइस, एज पर above calculation total turnover is not more than rupees 20 lakhs of goods and services, hence GST registration is not required। This is the answer। आप बोले सर आप बीच में कुछ तो भी समझाते समझाते रुक गए। हाँ, मुझे पहले आंसर कंप्लीट करना था, अब बता रहा हूं। समझ में आ गया कि वस्तु सर्विस दोनों है, 20 लाख से ज्यादा नहीं है, इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा वो भी बता रहा हूं। यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में टैक्सेबल सर्विसेज या टैक्सेबल गुड्स कुछ भी है, लेकिन वो इंटर स्टेट होना चाहिए, इंट्रा स्टेट नहीं। यहां पर टैक्सेबल सर्विसेज इन कौन सी है? इंट्रा स्टेट। मैंने बोला ना, अंडरलाइन क्यों करके रखा कि भाई टैक्सेबल सर्विसेज इन इंट्रा स्टेट। यदि ये इंट्रा स्टेट नहीं होती, इस प्रॉब्लम में क्या है? इंट्रा स्टेट है। यदि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये इंट्रा स्टेट के बजाय इंटर स्टेट हो जाता, तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखो, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज इफ इंटर स्टेट सप्लाई है, तब वो 5 रुपए की भी क्यों ना हो, और तब आपका टर्नओवर 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का भी क्यों ना हो, फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दैट टाइम द टर्नओवर रूल्स विल नॉट फॉलोड। यहां पर रूल कौन सा फॉलो हुआ है? टर्नओवर। देखिए टर्नओवर का रूल कब टूटेगा? जब टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज और वो भी इंटर स्टेट होगी। तो जैसा मैं बोल रहा हूं, इस प्रॉब्लम में रूल कौन सा आया? टर्नओवर का। टैक्सेबल सर्विस थी, फिर भी उसने ब्रेक किया क्या? नहीं किया। व्हाई नॉट? बिकॉज दिस टैक्सेबल सर्विसेज इज इन इंट्रा स्टेट मार्केट। स्टेट टू स्टेट में था, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में था, एंड दैट इज not required for GST registration। but if suppose here the word should be, यदि यहाँ word हो जाता है taxable services in interstate market, फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता? as per above calculation total turnover is not more than rupees 2 lakhs of goods and services, but direct not requiring the but there is a interstate taxable supply, hence GST registration is required। अभी मैंने लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? टैक्सेबल है कि नहीं है? है। लेकिन अकेली टैक्सेबल जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अप्लाई है क्या? नहीं। कौन सी टैक्सेबल अप्लाई है? इंटर स्टेट सप्लाई। यहां पर टैक्सेबल सर्विस कौन सी है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ही लगेगा। रूल्स के हिसाब से यहां पर इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सर्विस होने के कारण ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लागू नहीं होता है। लेकिन यदि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यदि यहीं पर ये इंट्रा स्टेट के जगह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही इंटर स्टेट रहता, तो मैं भी यहाँ पर इंट्रा नहीं इंटर स्टेट लिखता और तब सीधा सीधा वर्ड लिखता, because there is a inter-state taxable supply, therefore registration is required। याद रहेगा। अब वीडियो है, उसको बताने की समझाने की एक लिमिटेशंस है। तो ये हो गया आपका बेसिक रिप्लाई एडवाइस। ठीक है, अब इसमें दूसरा पूछा है, सेकंड में क्या पूछा है? What would be situation if Mohan is a resident of Assam? तो ये दूसरा मैं एडवाइस दे रहा हूं यहाँ सेकंड का।
if Mr. Mohan is a resident of Assam, then GST registration is required because turnover limit is more than ₹10 आई बात समझ में? महाराष्ट्र में गुड सर्विस की लिमिट 20 लाख है, जबकि स्पेशल स्टेट में ये लिमिट 10 लाख की है। अब यहीं पर ये नागपुर का था, इसीलिए 20 लाख की लिमिट लागू हुई, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। देखिए यदि ये नागपुर की जगह आसाम का बंदा हो जाता है, तब आसाम का व्यक्ति होने के कारण ये लिमिट 10 लाख है और तब तो उससे क्रॉस हो गई। इसीलिए if Mr. Mohan is a resident of Assam, then GST registration is required because the turnover limit is more than ₹10। थर्ड उसने फिर से पूछ लिया, what would be the situation if Mr. Mohan is a resident of चंडीगढ़? तब अब आपको बता दूं, ये मैं इसका आंसर लिख के नहीं दूंगा। तीसरा एडवाइस ये आपको तय करना है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश जरूर है, बट वह पूर्वी राज्य है क्या, ईस्टर्न स्टेट है क्या, उसको स्पेशल राज्य का दर्जा फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या? मैं मेरे अर्लियर वीडियो लेक्चर्स के अंदर में बता चुका हूँ। वो जो 11 राज्य उनके नाम लिया था, मैंने उतारा था आपको, शिमला से लेकर तो मणिपुर, मेघालय, सिक्किम वगैरह में घुसा दिया था, लेकिन वहां कहीं पर भी चंडीगढ़ आया नहीं है। तो चंडीगढ़ जैसा नागपुर वैसा चंडीगढ़। तो क्या एडवाइस देना है? सिंपल रहेगा कि एज पर अबव कैलकुलेशन तो टोटल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 20 लाख, देयरफॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज चंडीगढ़ इज इक्वल टू एज नागपुर। कोई फर्क नहीं है। आपका ये जो पहला वाला एडवाइस है वही एडवाइस इसको भी लागू होगा कि आप पहला और तीसरा 20 लाख की लिमिट के बेस के ऊपर में जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज not required, but if the supplier is from Assam, then the goods service turnover limit should not cross 10 lakhs, because here is the 17,50,000, hence the GST registration is required in Assam, not in general state. Hope you must understand the numerical problems. Next time in the next video we will try to another problem. Thank you.